गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.11 चल रही थी। 1 to 6 तक सारे सम हो चुके हैं। 7.11 में अगला सम मैं स्टार्ट करता हूं और वो है 7 नंबर का सम। ओके, बहुत अच्छा सम है। क्या है? I is equal to इंटीग्रेशन 0 to 1 x into 1 minus x whole raised to n dx। अगर ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इसके बाद ये सम आया है। अगर पहले ये सम आता तो क्या करते? तो शायद आपको मालूम है ऐसा एक दो सम आ चुका है, तो वहां पे हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करते कि 1 minus x को कुछ एज्यूम करते, और 1 minus x को क्या एज्यूम करते? t। ओके, तो सम थोड़ा इजी हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है। ओके, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन की सब प्रॉपर्टी है, तो यहां पे I इज इक्वल टू 0 to 1। क्या करने वाला हूं यहां पे x की जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, मतलब 1 plus 0 minus x तो हुआ 1 minus x को x की जगह पे 1 minus x रखने जा रहा हूं, तो x है तो वहां पे हो जाएगा 1 minus x, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 minus x है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 minus x whole raised to n dx। then I is equal to इंटीग्रेशन 0 to 1 minus x 1 minus 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x raised to n dx। और ये जो x raised to n है उसको मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारा हो गया I is equal to 0 to 1 into x raised to n, that is x raised to n minus x raised to n plus 1 dx। तो ये बहुत ही इजी फॉर्म हो गया। अब इंटीग्रेशन करने वाला हूं, यहाँ पे दोनों टर्म में सेम ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगी? x raised to n का इंटीग्रेशन होगा x raised to n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x raised to n, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x raised to n plus 1 divided by n plus 1, and here x raised to 1 power add then n plus 1 plus 1, that is n plus 2 divided by n plus 2, और लिमिट हमारी क्या है? 0 to 1। तो यहाँ पे पहले मैं अपर लिमिट रखने वाला हूं, मतलब x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, बाद में 0, तो I is equal to put here x is equal to 1, then 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2। Now I put lower limit, but lower limit is 0, then put x is equal to 0। First term is 0, same second term is also 0। Now see here 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2, then I take here LCM, and LCM is n plus 1 into n plus 2। See here n plus 2, now multiply with 1, then simple n plus 2, n plus 1 multiply with 1, same n plus 1, but here sign is negative, then what we get? See here I is equal to n plus 2 minus n plus 1, then minus n minus 1 in denominator, n plus 1 into n plus 2। See here 2 cancel, sorry यहाँ पे n कैंसल हो जाएगा, n कैंसल, न्यूमरेटर 2 minus 1, we get simple 1 in denominator, n plus 1 into n plus 2, which is our final answer। और बहुत ही इजी सम है। स्टार्ट करता हूं मैं अगला सम 8 नंबर का, 7.11 सम नंबर 8, IMP मोस्ट IMP सम। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log 1 plus 10x log 1 plus 10x dx। ओके, बहुत ही बढ़िया सम, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं IMP। ओके, IMP सम बहुत ही बढ़िया सम। तो यहां पे भी प्रॉपर्टी तो सेम वही है, x की जगह पे मैं लिखने वाला हूं अपर लिमिट दैट इज पाई बाय 4 प्लस लोअर लिमिट दैट इज 0 माइनस x, दैट मींस नाउ आई पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x। See here
I is equal to इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log ब्रैकेट 1 प्लस 10 x मतलब हुआ पाई बाय 4 माइनस x dx. I is equal to इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log bracket 1 plus. Now I use here which formula? Tan alpha minus beta, which is tan alpha minus tan beta in denominator. 1 plus tan alpha into tan beta. तो यहाँ पे हो जाएगा tan पाई बाय 4 minus tan x in denominator 1 plus tan pi by 4 into tan x dx. Now see here. Now I put value of tan pi by 4, which is 1. That's here. I is equal to integration 0 to pi by 4 log bracket 1 plus tan pi by 4, that is 1 minus tan x. Same in denominator 1 plus tan pi by 4, which is 1. Then in denominator 1 plus tan x dx. Now I take LCM. 1 plus tan x multiply with 1. Okay, then I is equal to integration 0 to pi by 4 log 1 plus tan x multiplied with 1, and here we get 1 plus tan x plus 1 minus tan x in denominator 1 plus tan x dx. See in numerator tan x cancel. Then in numerator 1 plus 1 2, in denominator 1 plus tan x. Then log 2 upon 1 plus tan x. I is equal to, I write here, integration 0 to pi by 4 log 2 in denominator 1 plus tan x dx. Now see here, log m upon n. Now I use property of logarithmic function. Log m upon n, then we write log m minus log n. Log m minus log n. I is equal to integration 0 to pi by 4 log 2 minus log 1 plus tan x dx. तो अब देखो, तो यहाँ पे I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 है, तो यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग कर देता हूं. तो I is equal, और जो log 2 है वो कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर निकाल देता हूं. log 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 1 dx. ओके, log 2 आउटसाइड, देन इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx. log 1 plus tan x dx. तो देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx. बिल्कुल हमारा क्वेश्चन है तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं I. देखो ये हमारा क्वेश्चन है तो I is equal to ये है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं I. तो I is equal log 2 और ये जो 1 है उसका इंटीग्रेशन x 0 to pi by 4 minus I. Take this side, then we can put I here. 2I is equal to log 2. Now I put upper limit, put x is equal to pi by 4, then here pi by 4 minus lower limit 0. 2I is equal to pi by 4 into log 2. 2 taking denominator, then we get I is equal to pi by 8 into log 2. ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. बहुत ही अच्छा सम था. ओके, अभी स्टार्ट करता हूं मैं 9 नंबर का सम. और ये जो सम है 8 नंबर, ये 2 या 3 बार लिख के कंप्लीट कर दीजिएगा. बहुत ही बढ़िया सम है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 9 नंबर का सम स्टार्ट करता हूं. क्वेश्चन लिख लेता हूं यहाँ पे. 9 नंबर क्वेश्चन है I is equal to इंटीग्रेशन 0 to 2 x into अंडर रूट 2 minus x dx. तो यहां पे भी सेम वही काम करने वाले हैं. x की जगह पे
लिखने वाला हूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, देन आई पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स हियर, I is equal to integration 0 to 2 put x is equal to 2 minus x under root 2 minus x dx, 2 minus x वैसा का वैसा ही मैं रखने वाला हूं, तो I is equal to integration 0 to 2 minus x under root 2 minus 2 cancel, minus minus plus x, then we get under root x, then I write x raised to 1 by 2 here, x raised to 1 by 2 dx. Now x raised to 1 by 2 multiply with bracket, then I is equal to integration 0 to 2 into x raised to 1 by 2, 2 into x raised to 1 by 2 minus, now see here, x raised to 1 into x raised to 1 by 2, summation of power 1 by 2 plus 1, we get x raised to 3 by 2, x raised to 3 by 2 dx. Now here I is equal to 2 take outside and integration of x raised to 1 by 2, which is x raised to 3 by 2 upon 3 by 2, x raised to 3 by 2 upon 3 by 2, okay, and लिमिट यहाँ पे हो जाएगी 0 टू माइनस एक्स रेस टू 3 by 2 है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या है, x रेस टू 1 पावर मॉड, वी गेट x रेस टू 5 by 2 इन डिनोमिनेटर 5 by 2, और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 टू I is equal to 2 to the 4 by 3 here. Now I apply limit, put x is equal to 2, then 2 raised to 3 by 2 minus x is equal to 0. Same here, minus 2 by 5 outside, put x is equal to 2, then 2 raised to 5 by 2 minus 0. I is equal to 4 by 3 as it is. Now see here, 2 raised to 3 by 2, 2 raised to 3 by 2, तो मतलब क्या हो, 2 raised to 1 by 2 raised to 3, that means root 2 raised to 3, root 2 raised to 3, root 2 into root 2, 2 into root, that 2 raised to 3 by 2, we get 2 root minus 2 upon 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, root 2 raised to 5, root 2 raised to 5, root 2 into root 2, 2, root 2 into root 2, 2, 2 to the 4 into root 2, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4 root, I is equal to 4 to the 8 root 2 divided by 3 minus 4 to the 8 root 2 divided by, तो देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 15, then 5 multiply with 8 root, 8 5 जा 40 root, and 3 multiply with 8, 8 3 जा 24 root 2, 40 root 2 minus 24 root 2, we get 16 root 2 divided by 15, which is our final answer. तो ये जो सम था उसका फाइनल आंसर हमको मिल गया। अभी एक या दो सम और करने वाले हैं, ओके, बाद में लेक्चर खत्म करेंगे, दूसरा कल काम करेंगे, ओके। चलो बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं। 1 to 9 खत्म हो चुके हैं सम, 10 नंबर का सम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा सम है, इसको भी मैं आईएमपी लिख लेता हूं, ओके, बहुत बढ़िया सम है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। 2 या 3 तरीके से ये सम हो सकता है। कैसे? तो यहां पे ये जो ये 2 कोएफिशिएंट में है, तो log की प्रॉपर्टी का यूज करें तो 2 यहां पे क्या आ जाएगा, पावर sin 2x मतलब 2 sin x cos x। तो पहली टर्म हमारी क्या हो गई, log sin स्क्वायर माइनस log 2 sin x cos x। 2 sin x cos x टेकिंग डिनोमिनेटर, ओके। 2 sin x cos x कहां पे ले जाना है, डिनोमिनेटर में ले जाना है। तो यहां पे हो जाएगा sin स्क्वायर इन डिनोमिनेटर 2 sin x cos x। बाद में कैसे देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2
2 taking power, then log sin square x minus log sin 2x, that is log 2 sin x into cos x dx. Now 2 sin cos taking denominator here, then I is equal to integration 0 to pi by 2 log in numerator sin square x, in denominator 2 sin x into cos x dx. साइन फंक्शन वन टाइम कैंसिल, तो यहां पे हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log, नाउ सी हियर sin x अपन 2 into cos, then sin अपन cos we get tan x divide by 2 dx. इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 1. अब प्रॉपर्टी का यूज करते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल की, तो क्या करेंगे यहाँ पे x की जगह पे मैं लिखने वाला हूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, देन आई पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x. इन रिजल्ट 1 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log, और यहां पे tan पाई बाय 2 माइनस x इन डिनोमिनेटर 2 dx. tan पाई बाय 2 माइनस थीटा वी गेट cot theta, pi by 2 minus x lies in first quadrant, and pi by 2 then function will be changed, tan convert into cot function, and I is equal to integration 0 to pi by 2 log in numerator cot x divide by 2 dx. ओके, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2. क्या करूंगा, रिजल्ट 1 और 2 दोनों का एडिशन करने वाला हूं. तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, नाउ 1 plus 2 that's here I plus I we get 2i integration 0 to pi by 2 first term log tan x divided by 2 plus log cot x divided by 2. अब क्या करने वाला हूं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसके प्रॉपर्टी का यूज करूंगा. तो log m plus n है तो हो जाएगा log m into n, then we get here 2i is equal to 0 to pi by 2 log tan x by 2 into cot x by 2 dx. So tan into cot which is inverse of each other, then multiplication of tan into cot which is 1, then we get here log 1 by 4 and which is constant, and log 1 by 4 I take outside. 2i is equal to integration 0 to pi by 2 log 1 by 4 को मैं पहले बाहर ले लेता हूं, तो log यहाँ पे हो जाएगा 1 by 4 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 1 dx. अब तो बहुत इजी हो जाएगा, 2i log 1 by 4 वैसा का वैसा ही, और ये जो 1 है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x 0 to pi by 2. Here 2i is equal to log 1 by 4, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है pi by 2 माइनस लोअर लिमिट which is 0, then 2i is equal to pi by 2 into log 1 by 4. 2 taking denominator, then we get our answer I is equal to pi by 4 into log 1 by 4. ये आंसर हो सकता है, और दूसरा आंसर भी पॉसिबल है. क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूं. पाई बाय 4 वैसा का वैसा ही इंटू लॉग 1 by 4 है तो उसकी जगह पे 1 by 2 होल स्क्वायर, और ये जो पावर में 2 है उसको मैं आगे कोएफिशिएंट में ले जा सकता हूं. तो क्या हो जाएगा, I is equal to पाई बाय 4 into 2 into log 1 by 2 2 is 4, then we get I is equal to pi by 2 into log 1 by 2. तो ये आंसर की भी पॉसिबिलिटी है, कोई भी आंसर लिखो सही है. ओके, चलो अभी
11 नंबर बाद में करेंगे, 12 नंबर का सम है, बहुत ही बढ़िया है। तो स्टार्ट करता हूं मैं 12 नंबर ऑफ एक्सरसाइज 7.11। 12 नंबर, I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi x dx अपन 1 plus sin x। ओके, बहुत ही बढ़िया सम। कैसे काम करेंगे? मेथड तो वही है, x की जगह पे मैं लिखने वाला हूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। यहां पे अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट x 0 है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, मतलब x की जगह पे मैं लिखने वाला हूं पाई माइनस x। हियर I is equal to इंटीग्रेशन 0 to पाई, और यहां पे हो जाएगा पाई माइनस x, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx। न्यूमेरेटर बिल्कुल वैसा का वैसा ही, मतलब पाई माइनस x जो है वैसा का वैसा है, और डिनोमिनेटर में क्या? साइन पाई माइनस थीटा, which shows second quadrant, and in second quadrant sin function is always positive and pi then function doesn't change, then we get sin pi minus x is sin x dx। क्या करेंगे? यहाँ पे स्प्लिट कर दो, तो पाई अपन 1 प्लस साइन माइनस x अपन 1 प्लस साइन। I is equal to इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई, डिनोमिनेटर में क्या? 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई, और यहाँ पे हो जाएगा x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? I। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं I। तो पहले टर्म में क्या करेंगे? तो पाई वो तो कांस्टेंट है, तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, और जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है उसका कॉन्जुगेट कहां होगा? 1 माइनस साइन। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं। तो यहां पे हो जाएगा I पाई आउटसाइड, देन इंटीग्रेशन 0 to पाई, न्यूमरेटर 1 प्लस साइन। नाउ I मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x माइनस I हियर dx। तो यहाँ पे dx अभी लिखना बाकी रह गया, dx minus I। Now see here, minus I take this side, then 2 times I। 2 times I is equal to pi integration 0 to pi in numerator 1 minus sin x, in denominator a plus b, a minus b, we get a square minus b square, मतलब 1 minus sin square, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब हुआ cos स्क्वायर, और वो आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। क्या करेंगे? यहाँ पे स्प्लिट कर दो, तो 2i is equal to pi इंटीग्रेशन 0 to pi 1 अपन cos स्क्वायर, we get sec स्क्वायर x माइनस साइन अपन cos स्क्वायर, sin upon cos square, then in numerator only sin function, in denominator sin cos x into cos x। So here sin upon cos we get tan x into 1 upon cos, which is sec x, then we get sin upon cos square is equal to sec x into tan x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec x into tan x dx। अब ये दोनों टर्म का इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये दोनों टर्म का। तो यहाँ पे 2i तो है ही, तो यहाँ पे पाई, और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x, और साथ में जो sec x इंटू tan x है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल sec x, और हमारी लिमिट क्या है? 0 to 2i is equal to pi. Now upper limit, put x is equal to pi. We know the value of tan pi, which is 0, minus sec pi, which is minus. Now I put lower limit, that means x is equal to 0, put here x is equal to 0, tan 0 0 minus sec 0 1, and 2i is equal to pi
minus minus plus 1 minus minus plus 1, then 2i is equal to, we get 2 pi here from both side, 2 cancel and we get our final answer I is equal to pi. ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। अगले सम अगले लेक्चर में बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया। आज जितने भी सम के उसमें से 8 और 10 नंबर दोनों सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, और ये दोनों सम 2 या 3 बार लिख के प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला काम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके।